بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ڈیئر ریسپیکٹیبل اسٹوڈنٹس، آج ہم کانٹریکٹ ایکٹ 1872 جو ہے اس کا جو سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے، جو بیس کرتا ہے سارے کا سارا، جس کی بنیاد پہ یہ سمجھ لیں کہ کانٹریکٹ ایکٹ کھڑا ہے. اگر آپ کو اس کویشچن کی سمجھ آتی ہے، اگر آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آتی ہے، جو سمجھ لیں آپ کو پورے کا پورا جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے. یہ کہنے کو تو یہ جو میں نے ہیڈ لائن لکھی ہے یہ صرف 14-15 ہیڈ لائن ہیں یہ، لیکن سارے کا سارا آگے اس کا پورا چیپٹر ہے. تو اس میں جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کویشچن وہ یہ ہے کہ واٹ از کانٹریکٹ، کہ کانٹریکٹ ہے کیا، اور اسینشیل آف ویلڈ کانٹریکٹ، کہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ کے لوازمات کیا ہوتے ہیں. لوازمات پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ لوازمات ہوتے کیا ہیں. سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کانٹریکٹ ایکٹ ہے کیا. واٹ از کانٹریکٹ؟ An agreement which is enforceable at law according to the section 2H of the Contract Act. کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ جس کو آپ قانون کی نظر میں انفورس کروا سکتے ہیں. انفورس کا مطلب ہے کہ عدالت میں جا کے آپ اس کے بہاف پہ ریلیف کلیم کر سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا ریمیڈیز اویلیبل ہیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ سب سے جامع ڈیفینیشن تو کافی ساری ہے، لیکن جو سب سے جامع ڈیفینیشن ہے وہ ہے اکارڈنگ ٹو دا 2H آف دی کانٹریکٹ ایکٹ. اس میں وہ کہتا ہے کہ این ایگریمنٹ، کہ کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ وچ از انفورسیبل ایٹ لا، جس کو آپ قانون کی نظر میں انفورس کروا سکتے ہیں، تو وہ ہے کانٹریکٹ. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ میں ڈفرنس کیا ہے. ایگریمنٹ ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہے سوشل، ایک ہے لیگل. تو کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ لیگل قسم کا ہونا چاہیے، سوشل قسم کا نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کسی شخص کو اپنے گھر ڈنر پہ بلاتے ہیں، آپ بڑا ہی اچھا خوبصورت لذیذ کھانے بنا کے اس کا انتظار کرتے ہیں. آپ نے کافی خرچہ کیا لیکن وہ نہیں آ سکا آپ کی انویٹیشن پہ، تو کیا آپ اس کے خلاف کسی کورٹ آف لا میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. کیوں؟ بیکاز دیٹ واز اے سوشل ایگریمنٹ، اٹ واز ناٹ اے لیگل ایگریمنٹ. اگر لیگل ایگریمنٹ ہو تو پھر آپ کورٹ آف لا میں جا سکتے ہیں. مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ پراپرٹی کے لین دین کا معاہدہ کیا، اب اس ٹرم اینڈ کنڈیشن کو وائلیٹ کیا کسی بھی ایک شخص نے، تو اگریڈ پرسن کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ کورٹ آف لا میں جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیفینیشن کانٹریکٹ میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو ہمارا مین کویشچن ہے اسینشیل آف ویلڈ کانٹریکٹ، اس میں بعض دفعہ یونیورسٹی میں جوڈیشل کے پیپر میں جو اس کا ایگزام آتا ہے سول ججز کا، اس کے پیپر میں آپ کو اس طرح سے بھی پوچھتے ہیں کہ آل کانٹریکٹس آر ایگریمنٹ بٹ آل ایگریمنٹس آر ناٹ کانٹریکٹ. اس کا بھی میں پہ جواب دوں گا کہ یہ کیا ہے، کس طرح سے پوچھا جاتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسینشیل کیا ہے. اسینشیل کا مطلب ہوتا ہے وائٹل پارٹ، جن کے بغیر کوئی چیز نہیں بن سکتی. مثلاً آپ نے چائے بنانی ہے تو چائے کے اسینشیل کیا ہوں گے؟ آپ کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، پتی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہوگی، آپ اس میں دودھ نہیں ڈالتے، آپ اس کو چائے نہیں کہہ سکتے. اگر آپ اس میں پتی نہیں ڈالتے، آپ اس کو چائے نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ ساری چیزیں، وہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے لوازمات، اسینشیل. تو اسی طرح سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کسی بھی کانٹریکٹ کے لوازمات
कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें होंगी, तो हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट है। अदरवाइज एग्रीमेंट हो सकता है, कोई और शक्ल उसकी हो सकती है, लेकिन उसे हम कॉन्ट्रैक्ट किसी सूरत भी नहीं कह सकते। सबसे पहले है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। किसी भी माहदे के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि देयर शुड बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि ऑफर हो। अब ऑफर क्या है? ऑफर व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or not, कि कब कोई शख्स किसी दूसरे की रजामंदी किसी काम के करने के लिए या ना करने के लिए उसकी जो हाँ और ना पूछी जाती है, that is called offer। अब अगर आप अपना फैसला किसी पे थोप देते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास मोबाइल है, मैं कहता हूँ कि फलां बंदे को कहता हूँ कि मैंने ये मोबाइल फ़रोख्त करना है, तो मैंने ये मोबाइल आपको इतने हज़ार रुपये में फ़रोख्त कर दिया। दिस इज़ नॉट ए वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर में क्या है कि द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन, दूसरे शख्स की मर्जी हासिल की जाती है हाँ या ना में। आपने ऑफर की कि मैंने बेचना है, वो आगे से कहता है कि मैंने खरीदना है, ये है वैलिड ऑफर। अगर आप अपना ही फैसला सुना देते हैं, उसकी मर्जी हाँ या ना में नहीं पूछी जाती, तो उसको वैलिड ऑफर नहीं किया जाता। ऑफर भी दो किस्म की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सेप्टेंस भी दो किस्म की है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आप किसी को फ़ोन पे कॉल करके कोई चीज़ फ़रोख्त करना चाहते हैं, एक्सप्रेस में आती है। रिटर्न सूरत में आप किसी को फ़रोख्त करना चाहते हैं, वर्बली फेस टू फेस बैठ के किसी को कोई ऑफर करते हैं, वो एक्सेप्ट करता है, वो भी एक्सप्रेस में आती है। लेकिन इम्प्लॉयड इसके बिल्कुल बरक्स हैं। फर्ज करें कि आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, रेलवे कुली आता है, आपका सामान लोड करना शुरू कर देता है, आप उसको नहीं रोकते, तो फिर कहा जाता है कि आपकी जो कॉन्सेंट है वो उसमें इम्प्लॉयड, यानी कि मानवी तौर पे लॉ हिमसेल्फ खुद से फर्ज कर लेता है कि चूंकि आपने नहीं रोका, तो इसलिए इसकी कॉन्सेंट या इस तरह की कोई ऑफर जो इम्प्लॉयड तौर पे होती है, जिसका जो मानवी तौर पे होती है, जिसमें दोनों पार्टीज अंडरस्टैंड कर रही होती है। मसलन आपने फर्ज करें आपने लाहौर जाना है, आप वैगन देखते हैं, बोर्ड लगा हुआ है उस पर लाहौर का, आप उसमें बैठ जाते हैं। अब अंडरस्टूड सी बात है कि आपको जाके उसने लाहौर उतारना है, आपने पैसे देने हैं, ना कोई ऑफर हुई ना एक्सेप्टेंस हुई, बट द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, द एटीट्यूड ऑफ पार्टीज, इट रिवील्स दैट देयर इज ऑफर एंड इम्प्लॉयड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बिटवीन द पार्टीज। तो ये सबसे पहले क्या है, ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, चाहे वो एक्सप्रेस है या इम्प्लॉयड है। और सेकंड वन है लीगल रिलेशनशिप। आपका जो किया हुआ मुआहदा है उसकी वायलेशन की सूरत में आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकें। जैसे मैंने आपको अभी अर्ज किया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, सोशल एंड लीगल, बट फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीमेंट शुड बी लीगल नॉट सोशल। कि आप किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की सूरत में, एग्रीमेंट की वायलेशन की सूरत में आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, किसी सोशल एग्रीमेंट की वायलेशन की सूरत में आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। जैसे अभी मैंने आपको इनविटेशन के घर पे बुलाया था, उसकी मिसाल दी है कि मुआहदा आपका इस तरह का होना चाहिए जिसकी वायलेशन की सूरत में आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सके। तो इसको कहा जाता है लीगल, जो एग्रीमेंट आपका जो है उसमें लीगल रिलेशनशिप कायम होती है। थर्ड वन इज लॉफुल कंसिडरेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन है बदल, द थिंग विच इज गिवन एज एक्सचेंज, जो चीज एक दूसरे को बदल में दी जाती है मुआहदे के नतीजे में। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है, दूसरा फरोख्त कर रहा है। खरीदने के लिए पैसा बदल है, फरोख्त करने के लिए वो प्रॉपर्टी बदल है जिसको फरोख्त किया जा रहा है। कहते हैं कि अब ये तो हो गया कंसिडरेशन। उसने कहा कि लॉफुल कंसिडरेशन,
کہ وہ कंसिडरेशन कानून की नज़र में जायज़ भी हो। मिसाल के तौर पे आप पैसे दे के किसी से शराब परचेज करते हैं, दैट इज़ नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन। आप पैसे दे के किसी के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाते हैं, दैट इज़ नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन। आप पैसे दे के किसी को कहते हैं कि फलां शख्स की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा दो, उसकी टांगें तोड़ दो, वो कहता है कि ये भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। दोनों पार्टीज के लिए वैलिड कंसिडरेशन वो है जो कानून की नज़र में जायज़ हो, यानी एक दूसरे के लिए जो बदल दिया जा रहा है वो कानून की नज़र में जायज़ है। आगे नाम है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कि जो मुआहदा करने वाले दो अशखास हैं, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज इन ए कॉन्ट्रैक्ट, कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। उसमें उनमें क्या हो, both the parties should be major, both the parties should be sound by, both the parties should not be disqualified by any law। 18 साल से ज़्यादा हो, अक्लमंद हो और कानून ने उससे मुआहदा करने से ना रोका। क्योंकि एक माइनर शख्स के मुताल्लिक़ कहा जाता है कि जितना मर्जी अक्लमंद हो, अपने आप को ज़ाहिर करे कि मैं मेजर हूँ, लेकिन वो हो माइनर, तो फिर कहता है कि उसके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि माइनर शख्स अपने बुरे भले में तमीज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो गार्डियन की परमिशन के बगैर या गार्डियनशिप हासिल करने के बगैर किसी मुआहदे में शामिल नहीं हो सकता। आगे नाम है नेक्स्ट सेक्शन फ्री कंसेंट, कि जो मुआहदा करने वाले दो अशखास हैं उनकी रजामंदी आज़ादाना तौर पे हासिल की गई, किसी किस्म का प्रेशर ना हो, जबर ना हो, दबाव ना हो। इसमें 5 चीज़ें हैं फ्री कंसेंट में। सबसे पहले है फ्रॉड, दूसरा है मिसप्रेजेंटेशन, तीसरा है कोर्शन, चौथा है इन्फ्लुएंस, पांचवा है मिस्टेक, कि ना तो दोनों अशखास एक दूसरे की मर्जी फ्रॉड के जरिए हासिल करें, मिसप्रेजेंटेशन गलत बयानी के जरिए हासिल करें, कोर्शन होता है दबाव के साथ ज़बरदस्ती दबाव डाल के हासिल करें, और अनडिफ्लुएंस कि अपना नजायज़ इख्तियारात हासिल करते हुए, मसलन 2 पार्टीज, 1 person had as apparent power and the second person had an inferior power। पीर साहब है अपने मरीज को कहते हैं फलां वादा कर लो, एक सुपीरियर रैंक ऑफिसर है अपने जूनियर को कहता है वादा कर लो, कि इस तरह की डॉक्टर अपने पेशेंट को कहता है, वकील अपने क्लाइंट को कहता है कि मेरे साथ वादा कर लो, चूँकि वो उसके ज़ेरे ताबिया है तो कहता है कि इसमें भी ज़्यादा ना रज़ामंदी शामिल नहीं होती। तो इस तरह का मुआहदा भी नहीं होना चाहिए, ना कि गनपॉइंट के ज़रिए मर्जी ली गई हो, ना जबर के ज़रिए, ना दबाव के ज़रिए, ना फ्रॉड के ज़रिए, ना गलत बयानी के ज़रिए, ना किसी गलत फहमी की बना। आगे जनाब है नंबर 10 पे लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि जो मुआहदा किया जा रहा है उसका मकसद भी कानून की नज़र में जायज़ हो। जैसे मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि लॉफुल कंसल्टेशन के साथ अल्लाह के इसको पढ़ेंगे तो जल्दी आपको समझ आएगी कि ना मुआहदे का बदल गैर कानूनी होना चाहिए, ना मुआहदा जो है उसका मकसद गैर कानूनी होना चाहिए। जिस तरह से आप किसी शख्स को पैसे देते हैं कि ये फलां की टांगें तोड़ दो, फलां के खिलाफ ड्यूटी गवाही दे दो, फलां की प्रॉपर्टी का नुकसान, जिस तरह आजकल हमारे माशरे में होता है, कहता है कि चूँकि द पर्पस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल, देयरफॉर इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन आई ऑफ लॉ। आगे जनाब है इसका राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, कि मुआहदे का तहरीरी होना और उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ कि ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, तहरीरी भी हो सकता है। सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट का कहता है कि इसकी ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि लाजमी नहीं कि आप मुआहदे की रजिस्ट्रेशन ही करवाएं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप करवाएंगे एक वैलिड सॉलिड प्रूफ एविडेंस आपके फेवर में क्रिएट हो जाएगी कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ जो है वो दे सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन होती क्या बात कि राइटिंग का आपको समझ आए, तहरीरी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि वो 1200 के स्टाम्प पेपर पे आजकल जो है उस पर लिखा हो और आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पेश करें
उस पर वो नंबर लगाए, उस पर बेचने वाले का बयान लिखा जाए, उसकी तस्वीर ली जाए, जिसके फेवर में हो रहा है उसका भी बयान लिखा जाए कि मैंने इतने पैसे दे के एग्रीमेंट किया है। ये सारी चीज़ें कि ये सारा कुछ होना चाहिए। आगे जनाब है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, कि जो टर्म एंड कंडीशन है वो माहदे की बिल्कुल वाज़ेह। कानून किसी भी ऐसा माहदा करने की इजाज़त नहीं देता जिससे आने वाले वक्त में झगड़े का। मसलन द कंसिडरेशन अमाउंट शुड बी सर्टन, कि माहदे की आवाज़ में जो बदल दिया जा रहा है, मसलन ये नहीं लिखना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जो है ये फरोख्त की जा रही है, इसके आवाज़ में मकबूल रकम ले ली जाएगी। व्हाट इज रीजनेबल अमाउंट? कहता है अमाउंट शुड बी डिटरमिन्ड, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ताकि पता हो कि इतनी लेनी है, इतनी लेनी। और उसके बाद है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी गिवन, तफसील दी जाए उस प्रॉपर्टी की, किस प्रॉपर्टी के मतलब माहदा किया जा रहा है, किस प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है। अगर इसका झगड़ा पैदा होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस माहदे के अंदर लिटिगेशन आएगी, कि हर किस्म की जो शराइत हैं वो बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। 13 पॉइंट पे है जनाब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कहता है कि ऑफर भी हुई, एक्सेप्टेंस भी हुई, लिखा भी गया, बदल भी जायज़ है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि ऐसा माहदा कानून की नज़र में जायज़ भी है कि नहीं, परफॉर्म भी हो सकता है कि नहीं, इसकी मुमकिन भी है कि नहीं। मसलन मिसाल के तौर पे ये जो मिसालें आपको दे रहा हूँ ये बहुत अहम होती हैं, ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा जल्दी समझ आती है कि ये है क्या। कहता है कि एक शख्स लिख के या ज़ुबानी तौर पे ये कहता है कि मैं आपके मुर्दा भाई को ज़िंदा कर दूंगा, आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे दें। कहता जी ठीक है, तहरीरी हुआ, लिखा गया, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, बदल भी देगी। अब देखना ये है कि इस माहदे की तकमील क्या मुमकिन है? नहीं है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, अननेचुरल है। कहता है कि इस तरह का अगर माहदा जिसकी तकमील ही नहीं हो सकती, वो भी कानून की नज़र में लीगल नहीं है, वाइड है, इलीगल है। आखिरी है जनाब नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि ऐसे माहदा जो कानून ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि आपने ऐसे माहदे नहीं करने, अगर करेंगे तो यही तसव्वुर होगा कि आपके और उस शख्स के दरमियान कोई माहदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर कहता है कि एग्रीमेंट किस किस्म का होता है कि जो वाज़ेह तौर पे कहा गया आपने नहीं करना। एग्रीमेंट इज स्टेन ऑफ ट्रेड, किसी भी शख्स को जायज़ कारोबार से नहीं रोका जा सकता। आपने देखा स्कूल, कॉलेज, मेडिकल स्टोर, दुकानें साथ साथ खुली हैं, उनमें से 2 लोग आपस में वादा करते हैं कि मैं साथ मेडिकल स्टोर नहीं बनाऊंगा, तो बाद में बना लेता है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? कि जायज़ प्रोफेशन, जायज़ तजारत, जायज़ कारोबार करने से किसी को नहीं रोका जा, जायज़ प्रोफेशन करने से नहीं रोका जा सकता। एग्रीमेंट स्टेन ऑफ मैरिज, किसी शख्स को जो बालिग है उसको शादी करने से नहीं रोका जाता। अगर 2 फरीक़ैन आपस में वादा करते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा तो इतने लाख, इतने करोड़ रुपये हर जगह दूँगा, कहते हैं कि इस तरह का माहदा हो ही नहीं सकता। अगर करेंगे तो यही तसव्वुर होगा कि हुआ ही नहीं। एग्रीमेंट स्टेन ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट स्टेन ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ लीगल राइट, किसी शख्स को अपना जायज़ हक लेने के मुतालिक, रोकने के मुतालिक माहदा नहीं हो सकता। अगर करेंगे यही तसव्वुर होगा कि नहीं है, हुआ ही नहीं। किसी को जायज़ अपना हक दही यानी कि वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। अगर इस तरह का माहदा होगा तो वो कानून की नज़र में इलीगल है। किसी को आप ये देखें कि किसी इस तरह का भी माहदा नहीं होता कि जिससे मोनोपोली कैन हो, जिससे माशरे में अमन अमान जो है वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, यानी कि अमन अमान जो कैन ना रहे, महंगाई हो जाए, 2 कंपनियां आपस में मिलकर वादा करने कल से चीज़ इतने की बेचेंगे, स्टैंडर्ड भी इनका हुई है, सारा कुछ हुई है। कहता है कि इस तरह के माहदे भी कानून की नज़र में इलीगल है। तो ये सारे के सारे
اسینشیل تھے. اگر یہ تمام کے تمام اسینشیل فلفل ہوتے ہوں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ کانٹریکٹ ہے, ادروائز کیا ہے, یہ ایگریمنٹ ہے. تو اگر آپ کو کویشچن یہ آتا ہے کہ آل ایگریمنٹس آر ناٹ کانٹریکٹ بٹ آل کانٹریکٹس آر ایگریمنٹ, تو پھر اینڈ پہ آپ نے یہ لکھنا ہے, کیونکہ ہر ایک کیا ہوا پرامس جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, کانٹریکٹ نہیں ہوتا. کانٹریکٹ کو وہی ایگریمنٹ پہنچتا ہے, وہی ایگریمنٹ جو ہے کانٹریکٹ کی شکل اختیار کرتا ہے جب اس میں تمام کے تمام اسینشیل پورے ہوتے ہوں. اگر اس میں سے ایک بھی کم ہے, آفر نہیں ہوئی, ایکسیپٹنس نہیں ہوئی, تو پھر آپ کو اس کو کسی صورت بھی کانٹریکٹ نہیں کہہ سکتے. تو اینڈ پہ آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے. تو آپ آخر میں آپ کو یہ آپ بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ لا کا ایگزام اٹیمپٹ کر رہے ہیں کسی بھی یونیورسٹی کا, چاہے آپ جوڈیشری کا ایگزام اٹیمپٹ کر رہے ہیں, یا آپ کسی سی اے کر رہے ہیں یا کوئی اور ایگزام اٹیمپٹ کر رہے ہیں, تو کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ہیڈ لائن بنائیں, اس طرح سے میں نے آپ کو بنا کے سمجھانے کے لیے کہ ایک ایزی وے سے ایگزامینر کو سمجھائیں. آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ایگزامینر کو کچھ نہیں آتا, آپ نے سارا کچھ بتانا ہے. اگر یہ نہیں کرنا کہ اس کو تو آتا ہی ہوگا, تھوڑا تھوڑا لکھیں آگے چلتے ہیں, ایسا نہیں. آپ تھوڑی سی ڈیٹیل دیں گے جب آپ کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ ایگزامینر کو کچھ نہیں آتا, میں نے بتانا ہے, تو پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈیٹیل دے کے اس کو بتا کے آگے چلنا. تو یہ تھا جناب آج کا ہمارا چیپٹر کہ اسینشیل آف ویلڈ کانٹریکٹ, واٹ از کانٹریکٹ, اور دوسرا کویشچن تھا کہ آل کانٹریکٹس آر ایگریمنٹ بٹ آل ایگریمنٹس آر ناٹ کانٹریکٹ. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بارے میں جو کمنٹس آپ نے ضرور کریں اور مجھے اچھے اچھے مشورے ضرور دیں تاکہ جو بھی خامیاں ہیں میں اس پہ قابو پا سکوں.